Good morning students, I am Namita Seth, welcomes back you in BB1 online classes, and we were continuing the chapter Mother's Day, which is written by J.B. Presley. So dear students, till yet we have seen that Mrs. Pearson, who was actually Mrs. Fitzgerald, okay, because Mrs. Fitzgerald knew the magic and he swamped up the bodies, both the personalities of Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald. And now here in the house of Mrs. Pearson is actually Mrs. Fitzgerald, okay, and she is continuously misbehaving with the family of Mrs. Pearson, with her daughter Doris, with her son Cyril, and now actually with her husband, that is George Pearson. And she actually mocked at the personality of George Pearson, that how he looks and how the club members, they used to laugh at the back of him and they called him Pompey Ompy. Okay, so all these things, actually the strange behavior of Mrs. Pearson was actually not at all tolerable by her family. Okay, so now let's see what happened, that Mrs. Pearson's personality would be judged by the family members or not. It's always beaten me why you should want to spend so much of time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling your names. So what is she is telling Mrs. Pearson, George Pearson अपने हस्बैंड को बोल रही हैं कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है, ये बात हमेशा मुझे चुभती है कि आप उस जगह बार बार जाना क्यों पसंद करते हैं जहाँ पर आपकी कोई इज्जत नहीं है, जहाँ पे आपका मजाक उड़ाया जाता है, जहाँ पर आपको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है. Leaving your wife at home night after night instead of going out with her, who doesn't make you look a fool? So रात को जब तुम बाहर, मतलब उनके हस्बैंड को कह रही हैं कि जब आप बाहर जाते हैं रात को अपनी वाइफ को घर पे छोड़कर, हर नाइट आफ्टर नाइट आप बाहर जाते हैं, तो आपको सब पागल ही या मूर्ख ही समझेंगे ना, कि मतलब अकेले ही चले जाते हैं रात को सेलिब्रेट करने के लिए. So you don't have family or not? Cyril enters right with a glass of milk in one hand and a thick slice of cake in the other. George, almost dazed, turns to him appealingly. अब सारिल की एंट्री हो रही है, उसके एक हाथ में ग्लास ऑफ मिल्क है और एक हाथ में बड़ा सा थिक सा केक का स्लाइस है. और जॉर्ज जो है, ही इज़ ऑलमोस्ट डेज्ड मतलब ही वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड. और फिर वो क्या होते हैं एकदम से, बिकॉज वो सच्चाई जब वैन ही लिसन द ट्रुथ एक्चुअली कि ही वॉज कॉल्ड एज ओम्पी पॉम्पी बाय द क्लब मेम्बर्स, सो उसे काफ़ी एम्बेरस भी फील हो रहा है. जॉर्ज, हियर Cyril, you have been with me to the club once or twice. They don't laugh at me and call me Pompey Ompy Pearson, do they? Cyril, embarrassed, hesitates. Angrily, go on, tell me, do they? So Cyril, now the George Pearson is asking to Cyril कि क्लब में तुम मेरे साथ 2-3 बार गए हुए हो, तो वहाँ के लोग क्या मुझे, मेरे पर हंसते हैं क्या, मुझे पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाते हैं, मुझे जवाब दो जल्दी, क्या वो ऐसा करते हैं? Cyril, embarrassed, means he was feeling very embarrassed, very bad, he was feeling very मतलब शर्म आ रही है उसे ना, bad feeling हो रही है. Well, yes, Dad, I am afraid they do. So Cyril क्या बोल रहे हैं, हाँ फादर ऐसा है, मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा वो करते हैं. George slowly looks from one to the other, staggered. अब staggering क्या होता है actually, not in a comfortable zone. दैट इज स्टैगरिंग, लड़खड़ाना, बौखलाना, लाइक दैट. सो जॉर्ज जो हैं वो अब सारिल और फिर मिसेस पियर्सन की तरफ देख रहे हैं और एकदम से क्या हो गया, वो हड़बड़ा गए कि मतलब ही लिसन द ट्रूथ. एंड जॉर्ज ने क्या करा, उसको श्योरिटी दे दी कि हाँ ऐसा ही होता. सारिल ने उसे श्योरिटी दे दी, तो जॉर्ज को बड़ा बुरा लग रहा है. जॉर्ज स्लोली, वेल आई विल बी डैम्ड. सो उसने बोला कि अरे, मतलब बड़ा दुखी हो रहा है, वो अपने आप को बुरा कह रहा है. George exit laughed slowly, almost as if somebody had hit him over the head. Cyril, after watching him go, turns indignantly to Mrs. Pearson. George अब वहाँ से निकलता है और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके सिर पे किसी ने बहुत हिट कर दिया हो कुछ, because he was now very tired as well as he was feeling very embarrassed. Okay.
और सैरल जो है वो उसको देख रहा है कि किस तरह स्टैगर वे में जो उसके फादर हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब वो बड़ी निर्दयता की तरफ से तरह मिसेस पियर्सन की तरफ, जो उनकी मदर है, उनकी तरफ देखता है कि एक्चुअली ऐसा उन्होंने क्यों बिहेव किया जॉर्ज की ये हालत हो गई। Cyril, now you should not have told him that, Mum. That's not fair. You have hurt his feelings. Mine too. So Cyril what is telling कि आपको ममा ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं था, आपने फादर और मेरी दोनों की फीलिंग्स हर्ट की हैं। मिसेस पियर्सन, sometimes it does people good to have their feeling hurt. The truth ought not to hurt anybody for long. If your father did not go to the club so often, perhaps they would stop laughing at him. So Mrs. Pearson क्या बोल रही हैं कि कई बार बहुत अच्छा होता है कि हम किसी को हर्ट करें, क्योंकि सच्चाई बताने से क्या होगा कि कुछ देर के लिए वो हर्ट होगा लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलेगा। और अब तो मेरे फादर को ये पता चल चुका है कि उन्हें वहाँ पे क्लब मेंबर्स दे यूज टू कॉल हिम बाय डिफरेंट नेम्स, तो तुम्हारे फादर जो हैं अब क्लब जाना थोड़ा कम कर देंगे और वो हंसना भी कम कर देंगे। Cyril gloomily, gloomily means very sadly, I doubt it. So Cyril कह रहे हैं मुझे तो डाउट है कि ऐसा होगा भी क्या। Mrs. Pearson severely, possibly you do, but what I doubt is whether your opinion's worth having. What do you know? Nothing. You spend too much time and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shows. So Mrs. Pearson what she is telling कि पॉसिबली तुम जानते क्या हो, है ना, मतलब डाउट ही रहेगा तुम्हें तो हर चीज़ों में, तुम्हें पता क्या है, तुम्हारे जो विचार हैं, जो तुम्हारे ओपिनियंस होते हैं वो बिल्कुल वर्थ हैं, बिल्कुल यूजलेस हैं, और तुम सारा अपना टाइम, अपना सारा मनी ग्रे हाउंड रेसेस मीन्स द रेसेस ऑफ डॉग्स, है ना, ग्रे हाउंड इज द रेस ऑफ डॉग, जहाँ पर डॉग्स की रेसेस होती है उसे ग्रे हाउंड रेसेस बोलते हैं। तो तुम ग्रे हाउंड रेसेस में अपना सारा टाइम, अपना सारा मनी वहाँ पे स्पेंड कर देते हो, तो तुम्हें क्या पता कि किसी के मन की बात या फैमिली में क्या चल रहा है, और तुम आइस शोज़ में और डर्ट ट्रैक्स में ही अपना टाइम स्पेंड करते हो। Cyril sulkily means क्या होता है, in a very bad tempered. Well, what if I do? I have got to enjoy myself somehow, haven't I? तो उसने कहा मैं किसी न किसी तरह अपना enjoyment कर रहा हूँ, तो क्या मुझे अधिकार नहीं है, क्या मैं नहीं कर सकता? Mrs. Pearson, I would not mind so much if you were really enjoying yourself. तो मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती अगर तुम सच में enjoyment कर रहे होते। But are you? क्या तुम सच में करते हो? And where's is getting you? There's a sharp, hurried knocking, heard of laughter. और क्या तुम ये समझ रहे हो कि तुम खुद enjoyment समझते हो कि क्या होता है? So एकदम से जब वो दोनों बहस कर रहे हैं तब क्या होता है कि नॉक की आवाज़ आती है, मतलब डोर नॉक होता है। Cyril might be for me, I will see. अब Cyril क्या हो सकता है कोई मेरा ही कोई फ्रेंड आया होगा या मुझसे ही कोई रिगार्डिंग पर्सन आया होगा, तो मैं देखता हूँ। Cyril hurries out left. In a moment, he re-enters, closing the door behind him. Cyril जल्दी से जाता है गेट की तरफ, थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और डोर क्लोज करता है, ठीक है। It's that silly old bag from next door, Mrs. Fitzgerald. You don't want her here, do you? So वो आके बोलता है कि यहाँ पर मतलब डोर पे कौन आया है, हमारे पड़ोसन जो मिसेस फिट्जरेल्ड है, और उसको क्या वो बोल रहा है, सिली ओल्ड बैग, यानी पुरानी, क्योंकि वो एजेड है, ठीक है। सो और बैग क्यों बोल रहा है उसे, बिकॉज शी इज़ प्लम्पी, है ना, थोड़ी मोटी है, तो पुराना सा ओल्ड बैग है, सिली सा, बिकॉज सिली क्योंकि वो बहुत बोल्ड है, बहुत ज़्यादा जो भी कहना है मुंह पे कह देती हैं, तो इसलिए वो उसको सिली ओल्ड बैग कह रहा है। और कह रहा है कि मिसेस फिट्जरेल्ड आई हैं, आप उसे चाहती हैं कि वो आए घर में। अब एक्चुअली उसे पता नहीं कि वो मिसेस फिट्जरेल्ड को ही कह रहा है ना, बिकॉज मिसेस पियर्सन कौन है, मिसेस फिट्जरेल्ड ही है, और मिसेस फिट्जरेल्ड के सामने ही उनकी बेइज्जती कर रहा है। मिसेस पियर्सन शार्पली, उसे गुस्सा आ गया। सर्टेनली आई डू, हाँ बिल्कुल मैं चाहती हूँ मिसेस फिट्जरेल्ड आए। आस्क हर इन एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग इधर, उन्हें कहिए कि अंदर आए और उन्हें प्लीज़ सिली ओल्ड बैग मत कहिए।
शी इज़ अ वेरी नाइस वुमन, अपनी बढ़ाई कर रही हैं कि बहुत अच्छी लेडी हैं, विद अ लॉट मोर सेंस दैन यू विल एवर हैव, और इतना सेंस है उनमें, इतनी सेंसिबल पर्सन है कि तुम में कभी उतना सेंस आ नहीं सकता. Cyril exits left. Mrs. Pearson finishes her stout, smacking her lips. Cyril re-enters left, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitates in the doorway. So अब मिसेस पियर्सन जो साइरल जो एग्जिट होता है वहाँ से रूम से चला जाता है. मिसेस पियर्सन अपना जो ड्रिंक है वो फिनिश करती हैं और उसके बाद में वापस से साइरल आता है और मिसेस फिtzgerald को अंदर लेके आता है, जो कि काफ़ी मतलब घबरा रही हैं डोर पे खड़ी खड़ी. कम इन मिसेस फिtzgerald, उन्हें बोल रहा है हाँ अंदर आ जाइए. मिसेस फिtzgerald मूविंग टू द लेफ्ट सेंटर एंशियसली. अब मिसेस फिtzgerald यहाँ कौन है? शी इज़ एक्चुअली मिसेस पियर्सन. वो घबरा रही है कि पता नहीं घर में क्या हो रहा है. आई जस्ट वंडर्ड इफ़ एवरीथिंग्स ऑल राइट. अब उसे हेजिटेशन हो रहा है कि सब कुछ ठीक तो है ना. साइरल सल्कली, नो इट इज़ंट. सो साइरल बड़ा गुस्से में कह रहे हैं नहीं कुछ भी ठीक नहीं है. मिसेस पियर्सन, of course it is, you be quiet. so क्या बोल रहे हैं कि of course बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तुम चुप रहो. एंड स्टूडेंट मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि व्हेन यू विल लर्न फोनेटिक्स, हम जब फोनेटिक्स पढ़ते हैं आज तक हम ओ एफ जो वर्ड है ना उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफ बोलते हैं, ऑफ फ. ठीक है. सो एक्चुअली द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट ऑफ, दिस इज ऑव. व से वन वाला. ठीक है, ऑफ. ठीक है. सो अभी तक हम इसे प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहे थे. दिस इज फोनेटिक्स के अगर हिसाब से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इट्स नॉट ऑफ, इट्स इज ऑफ. ठीक है. सो एक चीज़ और है, जैसे कि हम है ना सजेशन बोलते हैं, आज तक हम बोलते थे ना सजेशन. एक्चुअली क्या होता है फोनेटिक्स में भी ये क्या आता है, हमें फोनेटिक्स क्या सिखाती है? प्रोनाउंसिएशन सिखाती है, हाउ टू स्पेल, ये सारा हम फोनेटिक्स में पढ़ते हैं. सो एक तो आप ऑफ जो है इसका प्रोनाउंसिएशन आप सीख लीजिएगा, इसे इम्प्रूव करिएगा. दूसरी बात है जैसे कि सजेशन जब हम बोलते हैं तो जब TION वाली जो भी वर्ड्स होते हैं अगर उसके पहले स का साउंड आता है ना, सजेशन एस आ गया ना, स साउंड आ गया है ना, STION. सो जब TION के पहले जब स का साउंड हो जाता है ना तो वो च बन जाता है. ठीक है. सो दैट इज सजेस्चन, सजेस्चन हो जाएगा फिर वो. ठीक है. सो दीज आर द समथिंग विच आई एम नोइंग दीज थिंग्स, आई एम reading such things, so I want to share these things with you so you can also improve this thing. So continue with the chapter. Cyril indignantly and loudly, why should I be quiet? अब Cyril बोल रहे हैं कि मैं क्यों चुप रहूँ. Mrs. Pearson shouting, because I tell you to, you silly spoilt young pycan. So Mrs. Pearson क्या बोल रही है? क्योंकि मैं बोल रही हूँ तुम्हें, तुम बिल्कुल बिगड़े हुए लड़के हो. एंड यू यंग पाइकैन, पाइकैन मीन्स समथिंग वर्थलेस, जो यूजलेस होता है. मिसेस फिtzgerald प्रोटेस्टिंग नर्वसली. अब मिसेस फिtzgerald जो कि सच में मिसेस पियर्सन है, उन्हें बड़ा मतलब गुस्सा आ रहा है कि मतलब मेरे जो उनका सन है साइरल उसके साथ में ऐसा बिहेव हो रहा है, तो वो उसको प्रोटेस्ट करें. प्रोटेस्ट मतलब अपोज करना, यानी मिसेस फिtzgerald को मतलब बता रही हैं कि ऐसा बिहेव मत करो मेरे बेटे के साथ में. So she is telling, oh no, surely ऐसा नहीं है कि he is worthless. Mrs. Pearson civilly, now Mrs. Fitzgerald, just let me manage my family in my own way, please. अब वो बीच में दखल दे रही है तो मिसेस पियर्सन बोल रही है कि मेरी फैमिली को मैं अपने हिसाब से टैकल करूँगी, आप बीच में इंटरफेयर मत करिए. Mrs. Fitzgerald, yes, but Cyril sulkily and glowering. Mrs. Cyril Person, Mr. Cyril Person, to you, please, Mrs. Fitzgerald. Cyril stalks off into the kitchen. अब मतलब वो फिtzgerald को मतलब कह रहा है कि आप चुप हो जाइए प्लीज़, है ना, और वो किचन की तरफ चला जाता है. Mrs. Fitzgerald moving to the settee, whispering, oh dear, what's happening. अब जो मिसेस फिtzgerald हैं वो सेटी की तरफ जा रही हैं और कुछ बड़बड़ा रही हैं. कौन? मिसेस पियर्सन जो सच में हैं. वो बोल रही, डियर क्या कर रही हो तुम, ये क्या हो रहा है सब. मिसेस पियर्सन calmly, nothing much, just putting them in their places, that's all. So Mrs. Pearson कह रही कुछ नहीं, बस तुम्हारे जो जितने भी जो ये फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अपनी जगह बता रही हूँ कि वो हैं क्या.
डूइंग वॉट यू आउट टू हैव डन लॉन्ग सीन्स, जो काम तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए वो अब मैं कर रही हूँ. मिसेस फिजरल, इज जॉर्ज होम? शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सैटी. अब मिसेस पियर्सन के साथ में सैटी पे बैठ के बोल रही हैं, क्या जॉर्ज घर पे हैं? मिसेस पियर्सन, यस, आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक हिम इट एट द क्लब. सो मिसेस पियर्सन बोल रही, हाँ मैंने उन्हें बता दिया कि उसे क्लब में क्या बोला जाता है. मिसेस पियर्सन, यस आई हैव बीन. सो नाउ एक्चुअली वॉट मिसेस फिजरल इज टेलिंग कि जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो मतलब अब मैं कर रही हूँ, और जॉर्ज पियर्सन को मैंने बता दिया है कि उनको क्लब में क्या कहा जाता है. मिसेस फिजरल, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे. तो उसने बोला कि हाँ वो तो उनके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं. मिसेस पियर्सन, दे नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट. उसने बोला नहीं, अब मैंने उसको सब बता दिया है कि उन्हें क्या बोला जाता है. मिसेस फिजरल, ओ डियर आई विश यू हैडंट. मिसेस फिजरल, उसने बोला कि मिसेस फिजरल प्लीज़ तुम्हें ऐसा नहीं बताना चाहिए था, जॉर्ज बहुत टेंशन में आ जाएंगे. मिसेस पियर्सन, nonsense, doing them all a world of good and they will be eating out your hand soon you will see. उसने कहा तुम दुनिया की सारी भी कितनी भी अच्छाइयाँ उनके साथ कर लो, लेकिन वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ में eating out your hand soon. मतलब कि क्या है कि वो हमेशा तुम्हारा नुकसान करेंगे ही, तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचेंगे. मिसेस फिजरल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट दैम ईटिंग आउट माई हैंड. उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी कि वो मेरा मतलब कुछ बुरा कर सकें. Impatiently, well, whatever you want, they will be doing it. All three of them. Mark my words, Mrs. Pearson. तो मिसेस पियर्सन क्या बोल रही हैं कि अब तुम देखना कि जो तुम चाहती हो अब वही वो लोग करेंगे. तीनों जो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारा वही करेंगे जो तुम चाहती हो उन्हें करना. मेरे ये वर्ड्स मार्क कर लेना. George enters left glumly. He is unpleasantly surprised when he sees the visitor. He moves to the armchair left, sits down heavily, and glumly lights his pipe. Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald, who is regarding him anxiously. अब जॉर्ज एंटर होते हैं and he was very sad. Gloomily means very sad. और फिर वो आते हैं, सरप्राइज्ड होते हैं कि मिसेस फिtzgerald आई हैं, और वो आर्म चेयर पे बैठते हैं और वहाँ पर अपना लाइट जो पाइप है वो लाइट करते हैं टू स्मोक. एंड उसके बाद वो मिसेस पियर्सन और मिसेस फिtzgerald को बड़ी क्यूरियोसिटी से बड़ी सरप्राइजिंग वे में देखते हैं. George just looked in for a minute. I suppose Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald, who doesn't know what she is saying. Well, yes, I suppose so. George, aghast. George. So what? George जो है वो मतलब काफ़ी बोल रहे हैं कि जस्ट लुकिंग फॉर अ मिनट आई सपोज. तो बोल रहे हैं कि आप क्या लोग बातें कर रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे भी बताइए. मिसेस फिtzgerald बोल रही हैं कि वेल मतलब जो भी वो बातें कर रही हैं. वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज. अब मिसेस फिtzgerald उसको क्या बोल रही हैं, जॉर्ज बोल रही हैं, क्योंकि मिसेस फिtzgerald को ऑब्वियसली उसकी नेबर है, कैसे जॉर्ज बोल सकती हैं. लेकिन मिसेस फिtzgerald कौन है, मिसेस पियर्सन है, तो वो उनके मुंह से क्या निकलेगा, अपने हस्बैंड के लिए जॉर्ज ही निकलेगा. तो जॉर्ज बड़े गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं जॉर्ज आप मुझे जॉर्ज बोल रही हैं. मिसेस फिtzgerald, ओ आई एम सॉरी, व्हाट डज इट मैटर, योर नेम्स जॉर्ज इजंट इट. तो मिसेस पियर्सन जो है अब ऑब्वियसली मिसेस फिtzgerald को क्या कर रही हैं, थोड़ा प्रोटेक्ट करते हुए बोल रहे हैं क्यों जॉर्ज नहीं बोल सकती, तुम्हारा नाम जॉर्ज ही तो है. who would you think you are, Duke of Edinburgh. तो आपका नाम जॉर्ज नहीं है, तो आप क्या समझते हैं, आप कौन है, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग. एडिनबर्ग इज अ नेम ऑफ अ प्लेस एंड ड्यूक मीन्स क्या होता है, किंग. ठीक है, सो इजिप्शियंस जो किंग होते हैं दैट इज ड्यूक. सो आप क्या सोचते हैं कि आप कहीं के राजा हैं, तो आपका नाम जॉर्ज है तो जॉर्ज ही बोलेंगे. जॉर्ज एंग्रीली, अब जॉर्ज को बड़ा गुस्सा आ गया कि भाई नेबर उन्हें सिर्फ नाम से पुकार रही है, कोई मिस्टर जॉर्ज बोलना चाहिए. What's he got to do with it? Just tell me that. And isn't it bad enough without her calling me George? Naughty Pompey Pearson. And poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. अब जॉर्ज बड़ा गुस्से में बोल रहा है, आप चाहती क्या हैं, आज आपका कैसा बिहेव हो रहा है. मिसेस पियर्सन को बोल रहे हैं
कि आप मतलब सिर्फ इसको इनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, कि सिर्फ मुझे जॉर्ज बोलना कह रही हैं, आपने आज मुझे कोई चाय नहीं दी, मुझे पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन। उसके बाद आपने डोरिस को इतना रुलाया कि रो रो के उसकी आंखें जो हैं वो बल्जी हो गई हैं, बाहर की तरफ निकल गई हैं। मिसेस फिजरल्ड वेलिंग, ओ डियर आई आउट टू हैव नोन। सो उसने कहा कि ओ मतलब मुझे ये सब कुछ चीज़ें पता थी पहले से कि ऐसा ही होने वाला है। George staring at her annoyed. You out to have known? Why out to have known? Nothing to do with you, Mrs. Fitzgerald. Look, we are at sixes and sevens here just now, so perhaps you will excuse us. So George बोल रहे हैं कि आप बीच में क्यों दखल दे रही हैं मिसेस फिजरल्ड, आपको क्या पता था, पहले से आप क्या जानती थी मिसेस फिजरल्ड, और हम जो हैं बहुत काफ़ी टाइम से साथ हैं, हम कोई यंगस्टर नहीं है, हम काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, सो प्लीज़ हमारी को मतलब प्लीज़ एक्सक्यूज अस, यानी हमारी बातों में इंटरफेयर मत करिए। Mrs. Pearson, before Mrs. Fitzgerald can reply, I won't excuse you, George Pearson. Next time a friend and a neighbor comes to see me, just say something when you see her, good evening or how do you do or something, and don't just march in and sit down without a word. It's bad manners. So अब Mrs. Pearson जो सच में Fitzgerald हैं, वो चाहती हैं कि Mrs. Fitzgerald की हमेशा क्या हो, उनकी मतलब व्हेन शी यूज टू कम टू पियर्सन्स हाउस, तो उनकी इज्जत करी जाए, रिस्पेक्ट की जाए। तो वो बोल रही हैं कि जब भी मिसेस फिजरल्ड आती हैं तो जॉर्ज आपको उनके मतलब उनसे अच्छा बिहेव करना चाहिए, उनको ग्रीट करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए हाउ डू यू डू, एंड डोंट इंटरफेयर इन द टॉकिंग वे। और प्लीज़ है ना, ये सारे बैड मैनर्स होते हैं कि आप किसी नेबर के साथ में इस तरह सा बुरा बिहेव करें। सो शी इज़ जस्ट वॉट शी इज़ डूइंग, कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है कि अगली बार वो आए तो उसके साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर हो। मिसेस फिजरल्ड नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट। तो मिसेस फिजरल्ड कहती नहीं नहीं ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो पियर्सन है ना। No, it isn't all right. We have some decent manners in this house, or I will know the reason why. Glaring at George. Well, तो उसने कहा नहीं, हमारे घर में कुछ मैनर हैं और मैं ऐसा जानना चाहती हूँ कि मतलब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये इतना मैनरलेस बात क्यों कर रहे हैं। जॉर्ज, well what? Mrs. Pearson, why don't you get off to your club? Special night tonight, isn't it? तो बोल रही हैं कि टॉन्ट में बोल रही हैं मिसेस पियर्सन उसको कि तो आप यहाँ बैठ के हमारी बातें क्या सुन रहे हैं, जाइए अपने नाइट क्लब में जाइए, आप रोज़ वहाँ जाते हैं, आज नहीं जाना आपको। They will be waiting for you, वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। Wanting to have a good laugh, आपके साथ में कुछ आपको मजाक उड़ाने के लिए, आपके साथ में कुछ हंसी मजाक करने के लिए, ये सब वो वेट कर रहे होंगे। Go on then, don't disappoint them, तो उनको डिसअपॉइंट मत करिए और प्लीज़ उनके आप जो है नाइट क्लब में ज़रूर जाइए। जॉर्ज बिटरली, दैट्स राइट, make me look silly in front of her now. Go on, don't mind me. Sixes and sevens. Poor Doris, been crying her eyes out, getting the neighbors in to see the fun, suddenly losing his temper, glaring at Mrs. Pearson and shouting, all right, let her hear it. What's the matter with you? Have you gone balmy or what? So अब जॉर्ज बड़ा मतलब गुस्से में आ गया कि मुझे टॉन कस रही है कि मतलब मैं वहाँ जाऊँ, मेरा मजाक उड़ाया जाए। अब उसको बहुत गुस्सा आ गया जॉर्ज को, और वो बोल रही हैं कि पहले मेरा मजाक उड़ाया, फिर डॉरिस को रुलाया है, अब हमारे जो नेबर आए मिसेस फिजरल्ड, उनके सामने तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो मिसेस पियर्सन। सो उनको बड़े गुस्से में देख के बोलते हैं ठीक है, अब हमारे नेबर को भी सुनने दो ये सब बातें, और आखिर तुम्हारे साथ हो क्या गया है, तुम्हें आज तुम इस तरह का स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रही हो, क्या तुम बार्मी यानी आर यू मैड और क्रेजी, क्या हो गया है तुम्हें, तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो। सो ये सारी चीज़ें एक्चुअली कंटिन्यूस होती रहेंगी। नाउ लेट्स सी कि व्हाट कंसिक्वेंटली व्हाट हैपन्स, एंड we'll wait for the end of the chapter in the next video. Till then, happy learning.